कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए पहले भारतीय दिशा निर्देश जारी किए। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। To the Cardiological Society of India, under the leadership of Dr. Pratap Chandra Rath, President CSI, and Dr. Dujati Prasad Sinha, Honorary General Secretary CSI. They have been at the forefront of advancing cardiovascular health in our country. Their tireless efforts and significant contributions have been instrumental in shaping the landscape of cardiology in India. Leading this initiative is Dr. J.P.S. Soni, Chairman of Department of Cardiology at Sir Gangaram Hospital, New Delhi, and Chairman of the Lipid Guidelines. Dr. Soni's visionary leadership has shaped these guidelines, setting a new standard for dyslipidemia management in India and beyond. We are honored to have him as a keynote speaker today. I request Dr. Swadeep Srivastava to present a sapling to Dr. Soni and welcome him. Joining Dr. Soni today are esteemed co-authors who have contributed immensely to the development of these guidelines. We have amongst us Dr. S. Ramakrishnan, Professor of Cardiology at AIIMS, New Delhi. I will request Dr. Ankit Sharma to present a sapling to Dr. Krishnan and welcome him. Please allow me an opportunity to welcome Dr. Ashwini Mehta, Senior Consultant Cardiologist at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. I will request Mr. Sharma from Gangaram Hospital to present a sapling and welcome him. Their expertise and tireless efforts have been pivotal in crafting guidelines that will undoubtedly impact clinical practice nationwide. Today's press conference not only celebrates the culmination of rigorous research and collaboration, but also significant premature family history to keep the LDL level below 100. And if triglycerides are above 150, then keep it below 130 non-HDL. But main thing is to focus on this HDL cholesterol of 100, less than 100 for now. Now, high risk population we identified are those who are having high blood pressure, diabetes, and one of the risk factors. Any one of these risk factors are very commonly associated with of diabetes and hypertension. And in that situation, we kept them to keep their cholesterol below 70. And they show in the first line, it is the entry of the LDL which is important. And who pushes it is the hypertension and diabetes. So we have to keep it below 70, then only we will try to prevent the future disease and fatty and hypercholesterolemia. Genetic disease is also one of the data. Now, very high risk population in the world, where we have evidence of blockage of the artery as a patient has angina or stroke or heart attack. And in that situation, for patient, this way we do a lot of CT pulmonary angiogram. If the CT angio shows more than 50% blocked artery, two of the arteries, they are very high risk population. Diabetic with 20 years duration, with complications, neuropathy, nephropathy, these are the areas we decided to keep the LDL below 55. This is the same as the guideline of the European Society. We did not change. We did not have any significant data from our country. We believe this is a very good number. Very high, extremely high risk are those who get recurrent heart attack in young age, or those who have a lot of genetic problem along with young age heart attack. Then we decided in that we can go up to 40 hours. Now, how to manage this population? So that was the issue. So we have the drugs which we use, the statin
is the most important drugs. We have three common available: rosuvastatin and torvapine, atorvastatin, different strengths. We use them according to the code, the doses. Then we have non-static drugs like acetamide and bempedoic acid. These are also effective drugs. They also lower LDL cholesterol and reduce cardiovascular events of heart attack. Now, those who do not able to achieve the goal, as I discussed with my previous slide, then we have injectable drugs also, like PCSK9 inhibitors, which were already there for last few years. We need to give them 26 injections per year, 2 injections per month. And there is a new drug which has come, inclisiran, which has an advantage. They are equally effective, but advantage that it has to be given only 2 injections per year. So this is also available in our country, but because of the cost, affordability is not there. The most of the patients, those who need it, are unable to take these drugs for that. But this is available. But remember, for every patient of hyperlipidemia, when we are targeting the LDL and non-HDL, drugs are important, but lifestyle modification should not be forgotten, because this should be given advice to our patients that they should exercise, reduce alcohol, stop smoking, and also consumption of high carbohydrate foods. Sweet and sugary beverages are also very important. And even for general public, we say modest consumption of healthy fats may not be a problem for them, but the sugar definitely is an area which we have to be careful. And this is based on our own data which we did on pure studies in Indian population, and this is the data of our country where we come to this conclusion, because that is probably one of the contributory factor of young heart attack in our country. Now, those patients, those who come to us with heart attack, here we have suggested to our colleagues that we should act early. What we say, hit hard and hit early. Now in here, we do not have time, because those who get heart attack, they are prone to get recurrent heart attack within the first 3 months. And for that reason, we decided to keep their goal below 55. And we have suggested in many of these patients, a low and high dose of statin may not be enough, then maybe acetamide has to be given as a combination treatment. So combination treatment is in our guidelines and given a special status. And the repeat lipid profile should be done at 4 weeks to see whether goals have achieved. If they are not achieved, then we can use the bempedoic acid or injectable drugs, as I said already. Now the question comes, is there any need to treat the hypertriglyceridemia, triglyceride above 150? For that, in my previous few slides, I showed that whole country is having hypertriglyceridemia, very high prevalence of that. The low HDL is very high in that. So we suggested that one of the important cause of high triglyceride is the uncontrolled diabetes. So we should treat that. If the levels are still high, then most of the patients do not need any drug. They can be managed, high triglyceride can be easily managed by lifestyle changes, exercise, cessation of alcohol, tobacco, reduce sugar and carbon, reduce weight also helps us to reduce the triglyceride. But those who are having triglyceride high, in spite of lifestyle changes and control of sugar, if they have a heart attack or stroke, then we ask them to use the non-HDL cholesterol as a goal in this case. Here LDL value is not there. Here HDL has to be seen. And in non-HDL area, we do it by statin and non-statin drug and fish oil. And then fish oil, only EPA part, not the DHA part. Fish oil has got those components. DHA is probably not useful and harmful. EPA part is available now in our country. We should do. If the levels are very high triglyceride, generally they are prone to get pancreatitis. One of the cause of pancreatitis is alcohol, also. And third common cause is triglyceride. And in that case, pancreas is the drug of our own country. So this is very important. So non-HDL, as I said, already total cholesterol minus the HDL cholesterol. So it includes the cholesterol. Now coming to the last part, the genetic part, which is untouched for many years in our country. We did a lot of work with this, and we found that approximately more than 5 million people in our country are having familial hypercholesterolemia. This is a rough estimate. The disease comes between 35 to 50 years. They have very high cholesterol. Their receptor problem is there, which was for that discovery in 1985. Dr. Goldstein and Brown got Nobel Prize for that disease identification. And for that, the clinical diagnosis is possible now, because although the gold standard is genetic testing is not easily available. Very few centers like that, fortunately,
Ramakrishna has his own institute, but most of the labs they do not have. So we have a clinical method of diagnosing also which is available, which we are sharing with our colleagues in the country. Then here also statin, non-statin drugs are very important. The only thing is the treatment does not finish here, because here again young heart attack patient we have to keep them below 55. Because here we have to do a cascade screening of their brother, sister and their children above the age of 2 years now. And we found if their levels are very high cholesterol level, we then clinically think that this child is a carrier of familial hypercholesterolemia in that family. So if we treat them now at the age of 10, 15 or 14 years, we will prevent a heart attack at the age of 35 or 50. They will all get disease by 70, 75 or 80. We can push the disease. So cascade screening is the main aim of familial hypercholesterolemia diagnosis. We not only treat index case, so I say by diagnosing a case as FNH, we do not identify a case but a family at risk. So that is the important message we want. So this disease is not rare, it is quite high in our country and one of the important cause of young heart attack in our country. So we have to look for that. This message also we have given in our guideline very strongly to our colleagues. The other genetic is the K, which is above 50 milligram is considered high. 25% of the general population in India, which is higher than the rest of the world. It is 10 to 15 to 20%. We are having high. This elevated levels are associated with heart attack should be done only once. It should not be repeated this time. It remains safe because it is genetic. And it is a risk enhancer and aggressive management of associated risk factors recommended. At the moment, since we do not have any specific treatment for this, the research is going on and maybe in a couple of years we'll get a specific treatment for this, which is coming up called injection pelacarsen. But here at the moment what we have learned that if two people are having LDL 100 and one is having LDL 90 and the other LDL is normal, the 100 will behave like 130. So that is which is risk analysis. So we must learn to control the other risk factor. So this was the other thing. So finally, this is a very important thing which we have discussed now in our guideline. But we say that there should be a uniform reporting of lipid profile in all the laboratories in the country. What we are facing now, there are 3 lakh laboratories. Only 2,500 are the NABL accredited. And what we found that we have given, and most of the good laboratories in the country now given cutoff of LDL less than 100 for general population. What happens? Many patients, like for this example of this patient, is 55-year-old male, he is suffering from heart disease already. Now when he saw his level 90, he was very happy. He said my levels are normal. But this is not true because he is a case of CAD. So we suggested them look for your estimated risk and lipid goals. So since he is a case of heart attack, he belongs to very high risk population where there is a blockage of the arteries there already in this patient. So very high risk population, the level of LDL has to be less than 55. So you should learn now that this is not my normal level. It is 55 is my normal. You should go to doctor and get his doses adjusted. So this is the problem which we are facing in the country. Because many laboratories have a various ranges, like they say 70 to 130, 50 to 150, like that ranges are there. But good laboratories, they stick to these good like this. But then this chart has to be there below the report. And this has to be uniform throughout the country. Then only, because this is one of the important mistakes done in the society. People go with the lipid profile, they get satisfied, okay, my levels are normal, which is not normal. So we are having a meeting with the all India biochemistry and laboratories, and we are circulating them that this should be the way the lipid profile should be generated in the investigation report, so the patients are not misled. They should know their risk profile. For example, a patient instead of CAD would have been a hypertensive patient or diabetic patient, then we know it has to be high risk population, has to be 70. So you should not feel that 90 is okay with him. He has to reduce it to 70 by giving some statin group of blood. So in conclusion, dear friends, what I want to say that it is the first guideline for dyslipidemia management. And we know that dyslipidemia is the most important risk factor for vascular disease, for heart block or the stroke or cerebral limb vessel disease is the most important risk factor. And we have, there is extremely high prevalence of dyslipidemia in our country compared to the rest of the type of peculiar dyslipidemia we have. And it is a true silent killer. Unless there are do a lipid profile,
You will not able to know. You straight will go to CCU. Hypertension has some symptoms, diabetes has got some symptoms, it does not have any symptoms unless it will do. So this is what we emphasize in our guideline, that please do your lipid profile on time. Non-fasting measurement is good enough. Very good, and you can get most of the people can be corrected. Elevated LDL is the main target, non-HDL only for the patient. Patient who have got high triglycerides, we suggested use non-HDL to stop. And first lipid rise should be done at the age of 18 years. The Western literature says 35 or 40. We do not agree. The moment a child goes from school to the college, he should know his lipid, he should know his sugar, he should know his blood pressure. These three, because risk factors are coming earlier, as I have shown in my first slide. The risk factors are coming earlier in our country, so it is better to identify them earlier in the country. So the 18 years we have suggested. This is the expert opinion. The general population at risk, low risk should keep it below 100. High risk population should keep it below 70. And the aggressive targets are have to be achieved in heart attack patients. For patients with stroke, it should be kept below 55. And majority of time they will be needing combination treatment. Lifestyle modification is very, very important. As I say, sugar is more dangerous than the and exercise yoga is also very common. Here we have address about the yoga part is also combination treatment is studied and also in turn has become very important because we are attacking two different mechanisms. The rest everything I think Dr. Ramakrishna will discuss with you about what I think for that. Injectable drugs available, unfortunately very much unaffordable. And one should adhere to treatment. I think Dr. Mehta will discuss more about that. He has done a work on that. And his paper is there also in this document. And genetic causes which we have learned now for the last 10 years of our own research, that it is very important to find out genetic in India so that we not only treat the index case, identify on average our 1500 patient data of our country, which we have done research in Gangana. On average from each patient of FH, I get 2 more carriers, either brother, sister or children. And we give them treatment early so that they do not get disease in 4th or 5th, we can take it to 7th or 8th. There's the evidence for that. Lipopotential is also very important risk marker. And then all biochemistry lab in the country should have uniform reference range for the lipid profile. And we look for the risk estimate and also lipid goal. And I am really thankful to all my colleagues of the country, those who have really contributed. Without that, it was not possible to have such a document on lipid profile guideline. And also, I got a support from the CSIT, President, Vice President, and the Secretary for that. And thank you very much for listening to me. Now I will request Dr. Ramakrishnan and Dr. Ashwini Mehta to join me, and then we have the discussion with them. Please come. Thanks a lot for coming here and then listening to sir. And it's a wonderful expertise guideline that has come out. Probably the most important guideline that has come out, like Queen of Cattle from India. I think you people are very powerful. You can send the message across to the masses. Whatever these, otherwise these guidelines will remain in paper. The problem in India is that all of us are bothered about young people dying while exercise. Unfortunately, exercise has not killed them. The risk factor that they were having, that is what has killed them. Exercise is just the final push. The patient has to have a flag, then only the exercise can kill somebody. So there's so much noise in the media about young people dying. But young people died not because of exercise, but because of they all have huge number of risk factors. Can you believe any country having 80% people not having normal lipid levels? Can you tell me one country in the world which doesn't have 80% of people not having normal lipid levels? Can you have a country which is 40% people are hypertensive and roughly 20% people are diabetic in urban areas? These are the numbers that we are looking at. If you want to prevent heart attacks, we know heart attack occurs in 10 years younger than every other country. For every heart attack, more people die in India compared to other countries. These are very well established facts. So the best way is to prevent heart attack. How do you prevent it? Nothing. Just control all these risk factors. 90% of the heart attacks can be prevented or delayed. You may not be able to totally avoid, but if
if you in time treat all these risk factors, control these risk factors, you will be able to delay the heart attacks. Our primary aim of modern cardiology is to prevent premature deaths, premature heart attacks. Ultimately, I don't think we have answers for somebody dying at 80 with heart attack or stroke. I think research is going on in other places also. But coming to the risk factors, one of the most important risk factors coming to heart attacks is roughly around 50% of the heart attacks can be accounted, as Dr. Rajiv Gupta has clearly put it. Roughly around 50% of the heart attacks can be prevented if all the Indians follow these guidelines and measure their levels and keep it like this. Think about it. 50% no heart attack. I think some of the cardiologists will be measuring blood pressure, not doing angioplasty. So that is the advantage. So that is why there is so much emphasis on prevention. So the most important problem is prevention of the disease. Okay, once somebody has a heart attack, then generally they again there is also a problem in adherence that sir will discuss it. But there the problem is the more aggravated. If you say somebody is absolutely alright, if you tell that your cholesterol is high and you have to take lifelong medication, many of them they don't follow it. They always try to look for a doctor who will say it's okay. For you 130 level is okay. That's what they want. And you know, any number of WhatsApp universities are there in our country. And people follow most of these WhatsApp universities and qualified doctors. That's an unfortunate problem. So whereas in the Western countries, if a doctor has prescribed, mostly because the medicines are free to them by insurance or something, they don't have to pay for it. They generally by and large they take it. So overall compliance is high. So coming back to the lipids, so what we realize is 80% is not normal lipids. And half of them may need a drug to control it. And total number of people with dyslipidemia in this country who are aware, who are taking adequate medication and who are having control is less than 10%. Suppose if 100 people have high cholesterol in this country, less than 10% are aware about it, they have measured it and know it, and they have taken expert advice and they have continued on medication and their levels are what is desirable. So that number is 10% of all people who have dyslipidemia. So the people who are not aware who have dyslipidemia in this country is more than many countries' populations. So this is what we are dealing with. So ultimately, unless we address this, our premature deaths and this, all this is a boring thing. Unfortunately, everybody has to check it, everybody has to follow it, and everybody has to control it. That is the only thing. The other important guideline that message are also very clearly pointed out. Look at it. We have so many cars with us. Even the amount of air put in the car is different for each car. For the front wheel it is different, for the back wheel it is different in some models. So how can you think that one number will suit everybody? That is what we think. One lipid number will be okay for every age, everybody, diabetes, no diabetes, heart attack, no heart attack. It's not going to work out. So that is the different level of cutoffs are there. So what are the important controversy that came up? I think this is slightly difficult to understand, but if you can understand, if you can put it across, it will be a very important thing that will solve all the sorts of controversies. So there is in between, there is a lot of things that came up saying that cholesterol is not important for heart attack and all those things came up. And even if you search, there will be so many literature that's available. So what is the most important thing that you have to understand is that the most important drug for prevention, especially primary prevention, is nobody has a heart attack, you want to prevent heart attack, the most important drug is statins. So statins are not promoted by industry. Industry statins are off patent for ages now. Everybody wants to pull down atorvastatin if they can. But no drug can really put it to dust. So it just withstood the test of time. So we have so many molecules across medicine, none of them have worked in primary prevention models. None of the diseases have worked in primary prevention. That is, you don't have the disease, but a drug is given and you are able to prevent the disease. So statin is the only drug that has good amount of evidence for that. This is across medicine, not only cardiology. So statins are well proven. They are not being promoted by any one pharma industry because it is off patent for many years now. So my work कोई नहीं है. तो उसको पीछे ये जो महंगे मॉलिक्यूल है, they want to pull it down, but still it is standing. So that is the important thing. So what are the problems of statin? ऐसा नहीं कि statin के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है.
दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, एक मायोलजिया मसल की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आजकल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन अ गुड डॉक्टर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी इजीली मैनेज्ड, देयर आर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, अल्टरनेटिव मेथड्स टू मैनेज इट। द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यू ऑनसेट डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा बहुत, बट वो भी दिखा दिया कि आपको जो बेनिफिट मिल रही है, जो नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली बेनिफिट इज फार मोर इफ यू स्टार्टेड इट राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली बेनिफिट है, आप किसी को भी दे दें स्टार्टिंग, किसी को भी, कोई 15 साल के बच्चे को भी जिसका लेवल भी कुछ भी हो उसको भी दे दें, उसमें भी करीब 25 to 30% रिडक्शन हार्ट अटैक की होगी किसी को भी देने पे। बट प्रॉब्लम है कि आप उस बच्चे को देंगे या 80 साल के आदमी को देंगे, तो 80 साल के आदमी को हार्ट अटैक होने का क्षमता ज्यादा होगा, तो उसलिए 30% रिडक्शन मीनिंगफुल। वैसे एक छोटा बच्चे को देंगे तो उसका हार्ट अटैक होने का चांस ही नहीं है, उसमें आप 30% रिडक्शन क्या होगा? यही रीजन है कि आपको किसको देना है वो बहुत डिटेल में इसमें एनालाइज करना होता है, किसको देना है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को देख के नहीं होता है, आपका रिस्क लेवल को देख के होता है। सपोज आपका रिस्क लेवल 10 ईयर का आपका 5% है कि आप स्टार्टिंग लेंगे तो आपको लगभग 2% रिडक्शन हो जाएगा हार्ट अटैक की। आपको 20% रिस्क है आपका 10 इयर्स की, उसमें तो आपका अच्छा खासा तो 1/3 रिडक्शन हो जाएगा। आपका ऐसे ही 10 ईयर का 1% रिस्क है, उसको देने में क्या हो जाएगा? 1% रिस्क 0.7% हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं देने का। इसलिए आपको ओनली कोलेस्ट्रॉल देके नहीं देना होता है, ओवरऑल रिस्क देके देना होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गाइडलाइन, दैट इट इज इंडिविजुअल, you have to tailor it to each individual's risk. That is the critical message that you have to put it across. So that is why all these WhatsApp universities should be tracked very clearly. ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? अरे बहुत सारे वो चलता है कि बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल यूजलेस है, दवा बेकार है, ये बेसिकली ये पूरा इंडस्ट्री प्रमोट करता है। Sir, you are right, very right, and very important this message from your side, because you are whatever is talking that means something. You are not part of WhatsApp, but we are here the listeners, so that yes, your advice is important for us. So what do you think? Just I have a question. Pre-heart attack, what are the precautions? वो एक तो कॉमन प्रिकॉशन जो सबको लेनी है, साल्ट कम करनी है, शुगर कम करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, आपका वेट आइडियल मेंटेन करना है, ये तो कॉमनली सबको करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज करनी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इंटेक 5 सर्विंग्स रेकमेंडेड है। आप यहाँ पे कितने लोग होंगे जो इंडिया में 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते होंगे? नहीं खाते हैं लोग। इवन वेजिटेरियनिज्म है, थोड़ा अडल्ट्रेटेड वेजिटेरियनिज्म है अनफॉर्चुनेटली। तो ये प्रॉब्लम है प्राइमरी। इसके बाद तो मेजर मुद्दे आते हैं कि जो 80% लिपिड खराब है, 40% हाइपरटेंशन, 20% डायबिटीज है, उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल करना चाहिए। सर, जो नीम हकीम है वो वास्तव में यहाँ खतरे जाना है, ये लंबे समय से लड़ाई कर रही है एलोपैथ वर्सेस जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, तो उसको लेकर आपकी सोसाइटी दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या अभियान चलाएगी? सर, क्या आपका फ्यूचर है इसका सोसाइटी का? सिर्फ सोसाइटी गाइडलाइंस तक सीमित रहेगी या आपका अवेयरनेस का है, या नीम हकीमों के खिलाफ भी कुछ काम कर रहे हैं? व्हाट्सएप चैटिंग जो सर चौसा बोल रहे हैं, इसमें भी आप लोग कुछ जन अभियान छेड़ेंगे? अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो है डॉक्टर्स दे फॉलो सेम हमारी जो सिंपल रूल्स है। डॉक्टर साहब ने भी आपसे इतने एलोपैथ में कहा है लाइफ स्टाइल मॉडिफाई रखो, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करो, अगर वो भी करते हैं अपने मेडिसिन में तो कोई हमें हार्म नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सर का इशारा क्वैक्स पे था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात हम नहीं कर रहे सर। एज यू सेड कि व्हाट्सएप के जरिए वैद्य जी पैदा हो जाते हैं। अब वैद्य जी कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। ये खाइए, ये मत खाइए, अगर ये है तो ये लीजिए। तो इस पर से तो मीडिया से यही हम आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया शुड गिव ए पॉजिटिव, अपना एविडेंस को देख के उसके हिसाब से न्यूज़ देनी चाहिए। अब काफ़ी व्हाट्सएप में आता रहता है कि स्टैटिन बेकार दवाई है, कोलेस्ट्रॉल की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो ये सब सुन के लोगों ने अमेरिका, यूएस, यूके में बड़े कंट्रीज में लोगों ने स्टैटिन छोड़ दी जिनको जरूरत थी, और बाद में 1-1.5 साल के बाद जो डेटा आया उसमें देखो सबको फिर से हार्ट अटैक हुआ, उन सबकी डेथ्स हुई, अर्ली डेथ्स हुई। फिर उन्होंने रियलाइज किया ओह हमने तो भूल की कि हमने अपना स्टैटिन छोड़ा।
सो इसलिए आई थिंक मीडिया को बड़ा पॉजिटिव वे में अप्रोच करनी चाहिए. दिस व्हाट वी से शुड नॉट गिव मैसेज टू द सोसाइटी विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, just to make it सर more. कुछ बोलेंगे तो आप बोलिए सर. अभी बोल रहे ये हैं लिपिड मसला लिपिड है, क्वाक नहीं है. लिपिड है, agree. आप बोले तो बोले सर. मैं काफी बताएंगे. थैंक यू सो मच. डॉक्टर सामी ने बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की, समझाया, बताया, और डॉक्टर रामकृष्णन ने भी बताया कि आज का मुख्य विषय ये है कि हम नई लिपिड गाइडलाइंस आज आएंगी, रिलीज होंगी. लिपिड गाइडलाइंस क्यों, बाकी गाइडलाइंस क्यों नहीं? लिपिड गाइडलाइंस इसलिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक में. जितने भी लोग हैं सभी को अपना नंबर जानना जरूरी है. हम रोज देखते हैं हमारे पास जब लोग आते हैं हार्ट अटैक के, हैरान हो जाते हैं. 28 साल उम्र है, 34 साल उम्र है, अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, कोई तकलीफ नहीं थी. पर ये नहीं पता कि नसों में धीरे धीरे जम रहा है. छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं. हैरानी की बात है, ऐसा क्यों? तो मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है. एक मैसेज देना चाहूंगा कि सब लोग अपना नंबर जानें. कितना मेरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. सारी बातें भूल जाएं. खराब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, उस लेवल पे फोकस करें. ये इस गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य है कि सब तक पहुंचे. दूसरा उद्देश्य इसको नीचे रखना है. अच्छी दवाओं के साथ आज उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं ऑल ओवर, जिसमें मेनली डॉक्टर रामकृष्णन ने बताया स्टैटिन. हम ना तो किसी वैद्य जी ना किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. ये एक पूरे विश्व का वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ह्यूमन नेचर है. मुझे आज कोई दवाई खाने को बोले तो मैं कहता हूं भाई अगर बिना खाए काम चल जाए तो बहुत अच्छा है. तो एक ये ह्यूमन नेचर है, हम दवाई नहीं खाते. इसके कारण एडहेरेंस, दवाइयों की, दवाइयां खाना जिससे कम हो सके, लाइफस्टाइल की. तो सबको पता है कि हम सैर करें, सबको पता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सबको पता है हमें तला हुआ नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, पर नहीं करते ना. क्यों नहीं करते? यही प्रॉब्लम है. इसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है कि लाइफस्टाइल मेंटेन करें, दवाइयां खाएं, एडहेरेंस लाएं और कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आए, बहुत नीचे. और वो लेवल्स इस गाइडलाइंस में आए हैं पहली बार, जो हमारे देश के लोगों के ऊपर निर्धारित है. अभी तक गाइडलाइंस में बात हो रही थी अंग्रेजों की, वेस्टर्न पॉपुलेशन की. ये इस गाइडलाइन में आया, सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरा, हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी रेयर चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है. कुछ फैमिलीज हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और उनको हार्ट अटैक्स बहुत होते हैं, जिसको हम कहते हैं फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. ऐसी बीमारी आपने भी देखी होगी. एक भाई को हुआ, दूसरे को हुआ, आगे बच्चों को हो गया जल्दी उम्र में. इसके बारे में जागरूकता, जानकारी उपलब्ध करना सबके लिए कि अगर हो रहा है अपना चेक कराओ, अपने आसपास वालों भाई बहनों सबका, बच्चों का कराओ और उसको पकड़ लो. सेकंड, एक और बीमारी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, वो है लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए बड़ा होना. मीडिया के जरिए हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि एलपी लिटिल ए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. हर 5 में से 1 व्यक्ति का बढ़ा हुआ है. जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको ये चांस होने की बीमारी बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा सवाल है, भारत में कोई गाइडलाइंस नहीं है जो दवा कौन सी कंपनी का लिखे, किस स्थिति में लिखे. ऐसे में ये आप लोगों का जो रिकमेंडेशन है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? और जो जिस तरह से लैब भारत में मुद्दे की तरह उगा है, वो अपना ये डेटा जो है, जो भी पैरामीटर है, वो अपने तरीके से तय करता है. ऐसे में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सके? देखिए, ये गाइडलाइंस जो है ये आम पब्लिक और मेनली डॉक्टर्स के लिए. हमारा कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है किसी दवा के लिए.
ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं। हम बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा लीजिए, और ये दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं। आपके डॉक्टर आपके लिए चूज करेंगे क्या लेना है। ये हर एक के पास स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है हर डॉक्टर का, हर हेल्थ गिवर का, कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस डोज में लेनी है। तो एक हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये दवा लें या ये दवा लें, हमारा मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं दवाएं उपलब्ध हैं, दवाई सस्ती हैं, आम अवेलेबल है, सरकारी अस्पतालों में फ्री भी मिल जाती हैं। कृपया लीजिए, अपना कोलेस्ट्रॉल जानिए, उसको नीचे लेके आइए। तो एक कोई पर्टिकुलर दवा के लिए नहीं। सर एक चीज मैंने शायद गलत समझा है, उसको करेक्ट करने के लिए, ये वन लिपिड साइज डज नॉट फिट ऑल, ये आप लोगों ने बोला है जी जी कि वन लिपिड साइज डज नॉट फिट ऑल। सब हर आदमी के लिए एक खास नंबर, स्पेसिफिक नंबर जरूरी है। ऐसा तो ये कौन तय करेगा? जी ऐसा है, ये अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि 190 से ज्यादा है, तो किसी का भी हो वो हाई रिस्क है। अच्छा। दूसरी बात डॉक्टर साहनी ने समझाया था, दिखाया कि कुछ लोग जिनको ये बीमारी हो चुकी है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरों की नसों में ब्लॉकेज, ये सब एक ही जड़ है इनकी, कोलेस्ट्रॉल। तो इसके लिए जो टारगेट है, कुछ वेरी हाई रिस्क ग्रुप है जिनको बारी बारी हो रहा है, कुछ लोग हैं जिनके चांसेस ज्यादा हैं, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ लोग हैं जिनको 1-2 बार हुआ, या कुछ है जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो उसके हिसाब से मोटा 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। और ये डॉक्टर्स के लिए कि जब वो दवा लिखें तो किस आदमी को किस लेवल तक लिखें। अच्छा सर, वी आर टॉकिंग दिस post COVID. We laymen understand that COVID has done something mysterious with the heart. So is your guidelines relevant post COVID also? Sir, this is a very relevant question, because every day someone comes to us with heart attack and patient asks us, oh my God, I think it's a side effect of COVID, or I took the vaccine. Now the problem is that with the vaccine, you had immune related problems which were over within few weeks. So it's very unlikely what all scenario was there pre-COVID is applicable now. Nothing has changed post-COVID. It was just for that short period of time when COVID was active. This got nothing to do with COVID at all. But sir, during COVID, people have... Even if it is due to COVID, the risk has increased, strategies are going to be more effective if you are taking it rightly. The high risk will be prevented again. सर उस समय हाई डोज जो मेडिसिन लिया था, जो भी कोविड पेशेंट्स थे और लंबे समय तक लेते रहे हैं, अभी हम कोई भी बीमारी शुरू करते हैं इसमें यही बात आती है। जैसे मैंने प्री हार्ट अटैक की बात क्यों की, तो इसका रीज़न यही था, प्री कोविड के साथ तो नहीं है आपका, तो जो भी बीमारियाँ आ रही हैं उस पर हार्ट जो मुझे लगता है सबसे संवेदनशील होता है। और प्रश्न नहीं होता है क्या जो हमने वैक्सीनेशन लगवाया था उसकी वजह से तो नहीं हो रही है, क्योंकि सोसाइटी की एक जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को बताएं कि आम लोगों को इसमें कहीं कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं कि कोविड के लिए कोई स्पेशल है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन के साथ हार्ट अटैक बढ़ जाता है, ये तो काफी अच्छा डेटा है, कोई डाउट नहीं है। कोई भी इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक होती है उसका कुछ महीने के बाद हार्ट अटैक की परसेंटेज बढ़ जाती है। ये वर्ल्ड ओवर अक्रॉस एजेस पता है, तो ऐसा नहीं कि अभी पता है, ये कोविड की बात पता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ती है, वो कॉमनली उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली दिस आर ऑल नॉट वेरी मच रिलेटेड टू कोविड, बट ऐसे कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि भाई कंक्लूसिवली है नहीं है, कितना परसेंटेज ज्यादा है कम है। अब ओवरऑल आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक्स इन द कंट्री बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ा नहीं कि ऐसे कोविड के टाइम, एक्चुअली इनफैक्ट कोविड के टाइम थोड़ा कम हुआ था, थोड़ा कम हुआ था, वो भी क्यों हुआ था पता नहीं। So there is no scientific evidence. Scientific evidence. There is no scientific evidence to link COVID with this as of now. But there is some link, but it's not a huge. No, it is not been proved at all. So we should get COVID out of the mind. Absolutely. Ms. Sumi from the think tank. So, you
may have answered this, but just for clarity, I want to understand this. This specific cutoff range that people with high, very high risk, for instance, should have LDL cholesterol level of less than 55, with high risk less than 70. All these are the new things. Earlier it was just 100 for everybody across the. So what is the new element here? Is what I need to understand in this. It is not new. It has been there for guidelines, American guidelines, European guidelines have been there. We did not have our own guidelines. We used to follow them. And this has been very well known that these are the risk stratification. जिसको risk नहीं है उसका लेवल इतना तक रखा जिसको डायबिटीज हाइपरटेंशन है 70 के करीब रखो, हार्ट अटैक हुआ 55 रखो, something like that. This is very well known, and our own data, whatever we participated in clinical trials and all that, have not shown any difference. That's why we followed that. We say only thing certain areas like we are getting risk factor earlier, diabetes, hypertension. उन केसेस में जिनको रिस्क फैक्टर साथ एसोसिएटेड है, हमने सोचा कि अगर हाइपरटेंशन को 100 रखते हैं तो उस बेचारे को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. उसको 70 से नीचे रखो तो चांसेस है कि उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होंगे अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट को रिस्क फैक्टर है. सिमिलरली डायबिटिक पेशेंट, इस तरह से हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन के लिए. एंड फॉर जनरल पॉपुलेशन के लिए वेस्टर्न लिटरेचर कहता है 115 भी नॉर्मल है. हमने देखा कि नहीं, हमारे 100 से ऊपर जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, तो इसलिए हमने उसका कट ऑफ को 100 किया है. सो इट वाज वेरी वेल नोन. वी हैव मॉडिफाइड इट. I just want to add to what sir says, like some of the criteria within that extreme risk also, some of them we have modified according to our situation, and then some of the cutoffs are also slightly different. So the cutoffs are, we have kept the lower threshold as 150, has been kept at 100. This cutoff of 40 is not there universally across various guidelines. So these are the extra additions, and then some other additions in patients coming with heart attack, upfront treat with combination therapy. These are the new ones. And having a non-HDL cholesterol goal also to be considered is an additional thing which is not commonly found in various guidelines. It's like trying to meet with the current available data. We have tried to as much scientifically Indianize Western guidelines. Ms. Daphne from India Today wants to ask a question. हार्ट अटैक का पेशेंट है, हम खुश होते हैं कि चलो इसका 50. Can you please maintain silence, please? जैसे ही हम उनका देखते हैं कि उसका तो ट्राइग्लिसराइड 270 है, तो हमने we forget to look at the non-HDL. We only concentrated on LDL. हमने जब उसका non-HDL कैलकुलेट किया तो होना चाहिए 85, हमने देखा 110 है. तो हमें लगा कि भाई 50 तो LDL ठीक है, लेकिन non-HDL अवे है फ्रॉम टारगेट. सो हमने उसकी डोज को जो और एडजस्ट की so that उसको जो रेसिडुअल रिस्क को भी कवर हो जाए. Ms. Daphne from India Today. So I have one question. You spoke about high triglycerides in India and how it is a major marker specifically for Indians. What does that mean? If you can just explain in simple terms, and also why are Indians so high triglycerides compared to the Western world? Yes, I think the two things are there. One, we found that environmental factor, maybe to some extent genetic factor also. What is central obesity or truncal obesity, which has been linked earlier with some genetics also, has found that this phenomena of central obesity, what we say metabolic syndrome, small increase in risk factor or cholesterol risk factor is very high in this individual. We found there is a large contribution by our lifestyle. The physical inactivity, consumption of high carbohydrate food has also played, and taking lot of sweets and all that also played a role in raising the triglyceride. Because we know the triglyceride level goes up the moment you consume more of fat and also sweets. The carbohydrate food, they increase triglyceride very high, and they in turn reduce the HDL cholesterol. So that's what we found, that if a patient consumes a lot of sweets, consumes fat in modest quantity, the LDL cholesterol goes up, the HDL also goes up. The ratio remains same. Because if you consume more of carbohydrate and sweets, the triglyceride goes up, the HDL goes down. The LDL remaining same, but the size of LDL becomes small. So the ratio between LDL and HDL changes, which is not change in the consumption of small quantity of fat. So this change in the ratio and size becoming small, this enters into the arterial wall, causes more atherogenesis. So this is the explanation of why sweets and high carbohydrate diet has caused, and this has been proven in our study where we have participated. Mr. Manoj from Punjab History.
सर, ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू से वन थिंग कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो प्रतिदिन लोग मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसके बावजूद जो उन्हें जीने की इच्छा है, उन्हें लगता है कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये जो जीने की जो इच्छा है, और जो अभी बता रहे हैं कि हम जीवन को टाल सकते हैं, मृत्यु को टाल सकते हैं, हम ये लिपिड गाइडलाइंस को मान ले, हार्ट अटैक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा और बीमारियां नहीं होंगी। तो ये जो चीजें हैं, क्या हम मृत्यु को टाल सकते हैं? क्या मृत्यु को बहुत हद तक कुछ दिनों के लिए हम टाल सकते हैं? तो हम अपने जीवन को इतना जटिल क्यों बनाएं? द नेशन वांट्स टू नो ओनली वन थिंग। द क्वेश्चन इज कि व्हाई सम पीपल आर डाइंग just while sitting on the desk, while eating, while dancing. So ये पहले भी बोला था, ये रिस्क फैक्टर की ही प्रॉब्लम है और ओवरऑल लाइफस्टाइल पे ही प्रॉब्लम है। और मैं पहले भी बोला था कि हमारा एक मकसद ये नहीं है कि हम मृत्यु को अवॉइड करना चाह रहे हैं, हमारा मेन मकसद है कि प्रीमेच्योर डेथ को अवॉइड करना। If you look at overall premature death across premature death की जो मात्रा पूरे वर्ल्ड का देखेंगे, उसमें 75% इंडिया में हो रहा है। जो प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं, उसका लगभग 75% इंडिया में एस्टिमेटेड कि प्रीमेच्योर डेथ अनडाउटेडली ज्यादा हो रहा है। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि हमारे पास खराब जीन्स रन करते हैं, हमारा प्रॉब्लम है कि हम कोई रन नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। जीन्स की प्रॉब्लम शायद कम है, हम कोई रन नहीं करते हैं और हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल की इंटेक बहुत कम है और ज्यादा कार्बोहाइड्रेटेड फ्राइड थिंग्स की ज्यादा इंटेक है। ये प्रॉब्लम है हमारा। डायरी प्रोडक्ट्स की इंटेक ज्यादा है, ओवरऑल प्रोटीन इंटेक कम है। तो ये प्रॉब्लम आप समझिएगा, एक सिंपल डाइट की प्रॉब्लम, हमारा वेजिटेरियन की प्रॉब्लम ये कि आपका एक कोई भी डाइट में प्रोटीन इंटेक फिक्स हो जाता है कि आप लिपिड को भी कम करोगे तो क्या बढ़ेगा? कार्बोहाइड्रेट ही बढ़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ने की वजह से आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ती हैं और जैसे सर ने बोला वही प्रॉब्लम हो रही है। हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा बैलेंस लेना पड़ेगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। वो बैलेंस डाइट की जरूरत है और सारे बैलेंस की प्रॉब्लम है। इवन एक्सरसाइज में क्या करते हैं, सडनली ये सुनते हैं और सडनली अगले दिन सोचते हैं चलो यार मैं तो आज से ना 6 किलोमीटर दौड़ूंगा, मुझे तो 1 महीने बाद मैराथन दौड़ना है। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। आपने 40 साल जो नहीं किया है, 40 साल के बाद मत शुरू करो कि आपका मस्कुलर सिस्टम गिर कर देगा। और जो भी शुरू करनी है मॉडरेट इंटेंसिटी में शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो, कि ऐसा नहीं कि अगले दिन आप कोई एथलीट बन जाओ। सीरियसली पर्सनल क्वेश्चन है, मैं मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट हुई है, इंसान की औसत आयु 10 से 11 साल बढ़ गई है ग्लोबली। मेरी कुछ कंट्री में 12-13 साल है, हमारे कंट्री में भी 10 साल है। तो ये 30 साल के अंदर में 10 साल की उम्र बढ़ी है। और आपका क्वेश्चन था कि हम 100 साल तक जिए, बिल्कुल एम वही है कि हम 100 साल तक जीना चाहते हैं। तो जो 10 साल की बढ़ी है, जब हमने उसको एनालाइज किया, किस मेडिकल डिपार्टमेंट ने कंट्रीब्यूट किया इस आयु को बढ़ाने में, तो हमने बड़े खुशी से मैं कहूँगा हम तीनों के प्रयास में कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 10 साल में 7 साल, 30 साल था बाकी विभागों का, रेस्पिरेटरी और ट्रॉमा, एक्सीडेंट, so many other things they were, even cancer treatment and all that, did not contribute much. जब हम अपने कार्डियोलॉजी के अंदर घुसे और उसको देखना, एनालाइज किया कि हमने कैसे 7 साल की इंसान की उम्र बढ़ा दी, तो उसको हमने देखा कि it was the 2 or 3 major things. What we found, it was the control of risk factors, the blood pressure, cholesterol, sugar, smoking. ये 4 चीजें, और stress probably to some extent, but these 4 things have been controlled very well. तो कैसे कंट्रोल हुए? 50% कंट्रोल हुए बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और सब जैसे एम्फसाइज कर रहे थे, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन, टोबैको सेसेशन, इसने कंट्रीब्यूट किया 50%। 40% कंट्रीब्यूशन में ड्रग्स से, स्टैटिन, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, many other drugs which we discussed, to शुगर की दवाइयाँ, सब दवाइयों के कारण ये हमारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल हुए। बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग की कंट्रीब्यूशन 10% है। So 90% जो कंट्रीब्यूशन थी, ये थी by this. So this is how the 7 years of cardiologist contribution came.
So what we want to say, nutshell, what we Dr. Ramakrishnan said, that healthy lifestyle, prevention of the risk factor, that would be the ideal. Suppose risk factor आ जाते हैं तो उसको adequately control करें. डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि आप दवाई कोलेस्ट्रॉल का अगर मेरा 150 लेवल है LDL और मैंने 10 मिलीग्राम की अटॉर्मस शुरू की और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 120 आ गया, is not enough. I know I need to keep it below 100. So doses should be same. I mean, it has to be adjusted. Adherence should be there. So control of the risk factor to prevent the blockage of the artery. That is the true primary prevention. What Rama said. तो वो करेंगे तो हम अपनी बीमारी को ढकेल सकते हैं, डिले कर सकते हैं कि भाई 85 या 90 साल के बाद बीमारी आएगी. बीमारी तो आएगी, वापस तो जाना ही है, ठीक है ना. तो वापस जाना है तो सही समय में जाए ना. हम हिंदुस्तान के हमारे कंट्री के बाहर के जितने लोग हैं वो कई साल पहले वापस चले आते हैं. They go back to pavilion early. And उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारा जो है हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारी प्रॉब्लम है, हमारे अदर जेनेटिक फैक्टर टू सम एक्सटेंट है, नो डाउट. बट बैड लाइफस्टाइल, टोबैको च्यूइंग, देन cigarette smoking, weed smoking in rural area is so highly prevalent. So government has to play, health policy maker has to play a role also to control all those risk factors. तभी हम healthy जीवन बिता सकते हैं. और उसमें अश्विनी ने कहा कि the most important risk factor is lipids. That's why we were emphasizing on lipid guideline that kindly follow, know your number, because lipid has no symptom. It is a true silent killer of human being. Not hypertension. Hypertension has some symptom. Diabetes has got some symptom. So know your level. Try to correct it by lifestyle. And in majority of the time, I know a small or moderate dose of statin will be required. No doubt in that. So follow that treatment. Adhere to the treatment. Treat your risk factor to the goal, so that we prevent the onset of the disease. That only will improve the lifespan and we can go up to 100 years. Miss Priya from UCD. सर मेरे दो सवाल हैं. थायराइड बहुत ज्यादा कम हो गया, उसमें तो हार्ट के ऊपर असर पड़ता है. बट वैसे जो ब्लॉकेज वाली बीमारी है ना, उसमें फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा असर नहीं है. तो जैसे हाइपरटेंशन का हो गया या स्मोकिंग का हो गया या डायबिटीज का हो गया, उतना स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर नहीं है. हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, बट इतना स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर नहीं है जो ब्लॉकेज वाली बीमारी के. बट वैसे आपको थायराइड और हार्ट का डायरेक्ट लिखेंगे कि हार्ट का पंपिंग थायराइड हार्मोन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. सर एक छोटा कंट्रोल करते हैं तो लेवल्स नीचे बीपी बढ़ जाता है. थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है. एंड डायबिटीज का भी हायर थ्रेशोल्ड रहता है. एंड मोस्ट ऑफ द डायबिटीज अबव 40 इयर्स के ऊपर जनरली 100 के ऊपर लिपिड है, तो 70 के ऊपर तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, तो आपको स्टैटिन लेना बेटर है. स्टैटिन इज अदर बेसिक इंडिकेशन कि कोलेस्ट्रॉल इज इवन स्लाइटली हाई फॉर ऑल डायबिटीज. और एक चीज थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, बट किसी को पता भी नहीं होगा, जो आजकल जो मॉडर्न एंटी डायबिटिक दवाई 1-2 आया है, उनको छोड़ के बाकी ट्रेडिशनल एंटी डायबिटिक दवाई जितनी भी हैं, उनसे कोई डेटा नहीं है कि हार्ट अटैक कम हो जाएगा. वैसे उसी डायबिटिक पेशेंट में स्टैटिन देने से हार्ट अटैक ज्यादा कम हो जाता है. इसलिए स्टैटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है इन डायबिटिक पेशेंट्स, इवन इफ देयर कोलेस्ट्रॉल इज इवन बॉर्डरलाइन सिचुएशन. ये लेवल के ऊपर जो रिकमेंडेड लेवल के ऊपर है, डायबिटीज में सबसे ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि उनका देखिए, आपको भी पता है डायबिटीज में लगभग 2 गुना हार्ट अटैक के रिस्क है, तो 2 गुना बेनिफिट भी तो है स्टैटिन से. सेम फिलॉसफी है, जिसका रिस्क बड़ा है उसमें स्टैटिन ज्यादा काम करेगा. थैंक यू सर. इसके लेवल डिफरेंट है, वन साइज फिट नहीं होता, अलग अलग लेवल है. ये भी दिया है कब पहली बार लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए और इसका कितना फ्रीक्वेंटली एस्टिमेशन होना चाहिए. जेनेटिक फैक्टर को भी देखो, फैमिली हिस्ट्री को भी देखो. और हमारे कंट्री में जो यंग एज में जो बीमारी आ रही है, उसके कारण में जो रिस्क फैक्टर है, उसमें ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लिपिड का, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए. डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है बड़ी सेफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जिससे कि हम जो कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक आने की चांसेस और हार्ट अटैक से जो कॉम्प्लिकेशन हो, सब चीज़ को बचा सकते हैं. सो अगर ये मैसेज आप अपने थ्रू मीडिया के थ्रू, या प्रिंट मीडिया के थ्रू अगर आप सर्कुलेट करते हो, हमारी गाइडलाइन का मैसेज जो है, की पॉइंट्स 8-10 पॉइंट के 12-15 पॉइंट्स हैं, ये हमने आपको दिए हैं शहनाई में. तो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट सर्विस टू द नेशन, टू आवर कंट्री मैन. So this is my request to all of you to please spread this knowledge. सर मेरा भी रिक्वेस्ट है, ये डॉक्टरों के लिए गाइडलाइंस है, आप लोग डॉक्टरों में भी फैलाइएगा. फैला रहे हैं
वो तो हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर दिए हैं और तो स्प्रेड कर रहे हैं। आपको डॉक्टर लिखते हैं उसको डाउट मत करो और दवा खाओ, क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा है, साइलेंट किलर है, आपको पता नहीं चलेगा। उससे आपका मिनिमम 25 to 30% हार्ट अटैक कम होने का चांसेस है एक सिंपल दवाई से लगातार खाने से। और डेफिनेटली आपका वो जो लेवल आजकल तब तक ये स्टैंडर्ड ना हो जाए, जो लेवल ये लेवल इस गाइडलाइन को फॉलो करो तो आपका क्या लेवल होना चाहिए, या तो आपके डॉक्टर के ऊपर निर्भर करो कि आप अपना मत देखो कि लेवल सही है कि नहीं। Well, I think it's been very nicely summarized, but I just say a very simple message that each one should know the cholesterol level and try to get it down and seek help and continue taking medicines. Don't get influenced by what all you get in your WhatsApp or anywhere. Just stick to the medicines, but each and every person should get the cholesterol levels done because this simple measurement can save your life. जस्ट आई वांट टू ऐड ये सारा करने का ये कि हमारा पैशन है कि भाई इंडियंस को 10 साल पहले हार्ट अटैक हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, चलो इंडियंस को 10% एक्स्ट्रा मर जाएंगे हार्ट अटैक होने के बाद, चलो कोई बात नहीं, हाँ 10 साल कम जिएंगे वो भी कोई बात नहीं। क्या इंडियन लाइफ सस्ता है क्या? You should not accept this. Yes. So without your thinking, this message will not go across. मेरा टेक अवे ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका मेजर रीज़न, बेसिक फंडामेंटल रीज़न है कि हम लोग कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं, ओवरऑल हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा है और प्रोटीन इंटेक कम है। ये अक्रॉस द बोर्ड ये कॉमन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हम लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं एज अ कम्युनिटी। आवर ओवरऑल एज अ ग्रुप हमारा एक्सरसाइज परसेंटेज, एक्सरसाइज मिनट्स पर डे सब कुछ बहुत कम है। तो ये मेजर रीज़न है, ये सब रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा बढ़ने का। कुछ तो डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो मे बी अराउंड मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 5-10% ऑफ दिस एक्सेस, बट मोस्ट ऑफ दिस एक्सेस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई कि जो रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 80% ऑफ इंडियंस डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल्स इन नॉर्मल लिमिट्स, 40% roughly 35 to 40% of the Indians don't have their blood pressure in control, and roughly around 10 to 20% of urban India is having diabetes. ये सब unbelievable numbers हैं। इसको तब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक तो ये सब तो ये इफेक्ट है, आपको इफेक्ट दिख रहा है। अंदर सुनामी तो ये है, प्रॉपर सुनामी अंदर की जो चीज़ हैं ये तो ये है। इसको तब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक तो ये चलता रहेगा। अगर बात की जाए तो हम डाइट में इसका किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो डाइट डाइट में बेसिकली जो प्रोसेस फूड को कम करो, सॉल्ट एंड शुगर को जितना अवॉइड कर सकते हैं कम कर सकते हैं, कम करो। एडेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए, यूजुअल सॉल्ट आप जब दाल में सब्जी में डाल रहे हैं वो ठीक है, नो एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट फॉलो करना चाहिए सबको। और अननेसेसरीली शुगर, आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो अननेसेसरी शुगर को अवॉइड करना है। और बेस्ट पार्ट है कि पोर्शन कंट्रोल करो। चलो आप यार आपको डायबिटीज़ नहीं है, जब भी आपको शुगर खाने का मन है, स्वीट खाने का मन है तो उसको पोर्शन कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि आपने आधा किलो हलवा खा लिया, तो आप पोर्शन कंट्रोल करो। जिस एक लिमिट एक एज के बाद कंट्रोल करो। और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम होती है, हम जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंजप्शन हम जो खाते हैं, कैलोरी जो अंदर जाती हैं वो यूज़ होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट में, जो अपने सेल्स को मेंटेन करने में यूज़ होती है, वो धीरे धीरे कम होते जाती हैं। उसके हिसाब से हम अपने इंटेक को कम नहीं कर पाते। कि अपने भगवान ने इतना एफिशिएंट बनाया हमें कि हम दौड़ेंगे, इतना ज़्यादा दौड़ेंगे तब भी कम कैलोरी यूज़ होती है। वैसे कि एक बहुत बड़ा समोसा में 300 कैलोरी होती है, उसको आपको निकालना है तो आपको कम से कम 15 दिन 1 घंटे दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप 300 कैलोरी निकाल पाओगे। इतना हमें एफिशिएंट बन गए। तो इसलिए हमें डेफिनेटली डाइट को भी बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, हाई कैलोरी फूड को अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजप्शन बहुत बढ़ना चाहिए। कि आजकल रिकमेंडेशन है 5 सर्विंग्स का, 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक बंदे को खाना है। 1 सर्विंग का मतलब 1 कटोरी, 1 कटोरी 5 कटोरी खाना चाहिए। ये हमारे रूटीन में नहीं हो सकता, तो आपको इसके लिए सैलड्स फॉर्म में खाना चाहिए, फ्रूट्स की फॉर्म में खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक से बचेंगे। हार्ट अटैक एक चीज़ है, आपको बीपी कम हो जाएगा, बीपी के प्रॉब्लम कम हो जाएगा, आपका कैंसर की मात्रा भी कम हो जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक से। सब कुछ रिलेटेड है, सारे लाइफस्टाइल डिजीज एक ही चीज़ से होती हैं। सब एक्सरसाइज करो, बहुत सारी बीमारियों से बचाव होती है। तो सेम चीज़ अच्छा डाइट खाओ तो बहुत सारी बीमारियों से बचोगे। ये मेजर थिंग। और प्रोसेस फूड को अवॉइड करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाओ। सर तेल, नमक, शुगर कौन सी यूज़ करनी चाहिए?
कोई कहता है सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, कोई कहता है देखिए तेल में ये बेस्ट तेल ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है। तेल अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है कि एक तेल बोलना बड़ा मुश्किल है। हर एक ज़माने में आप सिंपल ही सोचो, पुराने ज़माने में लोगों ने अपना सही सोचा है, सही किया है। आप हर एक जगह देखोगे 2 तेल यूज़ किया होगा, एक डीप फ्राई करने के लिए एक तेल यूज़ किया और एक बाकी चीज़ों में एक तेल यूज़ किया। ये ट्रेडिशनली हम करते आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ में जो मौसम चल रही हैं पूरे इंडिया के लिए पॉसिबली एक तेल ठीक नहीं है कि आपको अलग अलग चीज़ में जो चीज़ चल रही है, जो सस्ता है, सिंपल है, वो तेल जनरली बेटर होती है। जैसे सरसों का तेल बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली, देसी घी भी मॉडरेट क्वांटिटी में बहुत ख़राब नहीं है कि बट जिसको नहीं खाना चाहिए वो अवॉइड करें, बट बाकी लोग जनरली कम कंज्यूम कर सकते हैं। आप पुराने देखेंगे तो यही सरसों का तेल और देसी घी यूज़ किया लोगों ने। अब जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो तिल का तेल यूज़ किया और ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया, वहाँ इजीली अवेलेबल है, वो यूज़ किया, वही कॉम्बिनेशन ऑयल बेटर है। ये फाइनली इतना रिसर्च के बाद यही निकल के आ रहे हैं। बट ओवरऑल रिपीटेड डीप फ्राइंग अलाउड नहीं है। जो डेफिनेटली खराब हैं वो ट्रांस फैट्स हैं। वो ट्रांस फैट्स जो आते हैं, जो डालडा, जो रिपीटेडली रीफ्राइंग होती हैं, इसी में ट्रांस फैट्स आते हैं। ट्रांस फैट्स 100% अवॉइड करना है, वो बैन होना चाहिए ट्रांस फैट। वैसे तो प्रोसेस फूड में तो काफ़ी बैन हो गया इंडिया में, बट फिर भी आप समोसा में एक ही कढ़ाई में आप 7 दिन बनाते रहोगे तो ट्रांस फैट तो बनेगा ही बनेगा। थैंक यू सर। जिस तरह से आज के समय में देखा जाए कुछ यंग जनरेशन को जो अटैक की शिकायत आ रही है, क्या कह सकते हैं सर? देखिए, ये जो यंग जनरेशन्स को हार्ट अटैक्स की समस्या आ रही है, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और जो सबसे मुख्य कारण मैं कहूँगा वो लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है और साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान नहीं दे रहे। जैसे हम अपने नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी हैं जो पहले हम बहुत खूब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब चलते थे, वो हमने बंद कर दिया और इन सब चीज़ों की वजह से स्मोकिंग करने लगे, रात को लेट सोना और सुबह जो है बहुत देर तक सोना, जो हमारी नेचुरल स्लीप और वेक साइकिल है उसका डिसरप्ट होना। साथ साथ हमारे जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज कारण है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारे के सारे मिलके ये एक साथ जब काम करते हैं तो ये हार्ट अटैक्स प्रीमेच्योर होते हैं, आने से पहले होते हैं। जो हम एक उम्र है कि 50, 60, 70 साल के बाद हार्ट अटैक्स होते हैं, पर यंग लोगों में देखे जा रहे हैं। उसके मुख्य कारण यही हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ड्रग्स, साथ साथ जो हमारे लाइफस्टाइल का चेंज है, दिन रात का चेंज होना, और साथ साथ इसमें फास्ट फूड का भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि साइलेंट अटैक लोगों को काफ़ी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, साइलेंट अटैक जो है मैं उसकी 2 बातें मानता हूँ। एक, आज से पहले इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में सेंसेशनलिज्म नहीं था, तो आजकल उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है क्योंकि जिन लोगों को होता है एकदम से सब जगह फैल जाता है और हर आदमी जुड़ा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, हर थोड़ी देर में अपडेट होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सब तरीक़ों से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हाँ, असलियत में हार्ट अटैक्स भी जल्दी हो रहे हैं, यंग लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं और उसके पीछे मेन कारण जो है वो चेंज इन लाइफस्टाइल और जो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग हो गया, चाहे ड्रग्स हो गए, चाहे हमारा सोने और जागने का स्लीप साइकिल का चेंज होना हो गया और प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब को लेके जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ तक साइलेंट हार्ट अटैक्स की बात है, बिना सिम्टम के होने का, उसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ अंदर की हार्ट की बीमारियां भी होती हैं जिसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, जिससे जल्दी मृत्यु हो सकती है। जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कई फैमिलीज़ में होती है, एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है, वो होती है कई फैमिलीज़ में। तो इन सब के अंदर सडन डेथ या साइलेंट डेथ भी होती है। अगर देखा जाए, अगर जो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? जी, देखिए, मुझे लगता है कि हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें, हमें बचपन से ही अपने बच्चों को लेके ही ध्यान देना चाहिए। हम जो खाते हैं हमारे बच्चे वही खाते हैं, वही सिखाएं कि हम जितना हो सके अच्छा खाना खाएं। हम बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा और अन्य फास्ट फूड की तरफ ना लेके जाएं। आज आप देखिए, स्कूलों के अंदर ज़्यादातर बच्चों का वज़न बढ़ा हुआ है और हमारे टाइम पे आप देखिए, आज से 30-40 साल पहले स्कूलों में बच्चे जो थे वो बहुत ही इतने ज़्यादा वज़न नहीं था। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं पूरे के पूरे परिवार की, जितना हो सके चलें,
कहीं आसपास जाना है तो गाड़ी का प्रयोग ना करें, पैदल चलें। कोशिश करें कि 10,000 कदम रोज़ हम सब चलें, और जितना हो सके जो हाई कैलोरी खाना है, चाहे चीनी है, चाहे और है तली हुई चीज़ें, इन सबको अवॉइड करें। जितना हम ये कंज्यूम करते हैं बॉडी में जाके ये बदल जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, कोलेस्ट्रॉल में, और यही जाके जमता है। तो हाई कैलोरी डेंस फूड्स, इसमें चीनी हो गई, स्वीट चीज़ें हो गई, हलवाई की बनी हुई चीज़ें हो गई, इन सबको अवॉइड करें। सर एक सवाल ये है जी। कि जो भ्रम है कि कोविड के जो जी डोजेस लगवाए जी हैं, जी जी उनको किस तरह से हम पब्लिक को समझाएं कि जी वो जी ये ना सोचें जी कि उनकी वजह से ही हार्ट अटैक हो जी ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है। और अगर मैं कहूँ जो ये कोविड है, हाँ, जब कोविड की महामारी चल रही थी, पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम के ऊपर हार्ट अटैक्स हो रहे थे लोगों को कोविड की वजह से, पर हमने देखा वैक्सीन से भी कुछ हो रहे थे। अगर इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत लिमिटेड था और कुछ हफ्ते के अंदर ही चला जाता है। कोविड के बाद शरीर में बदलाव जो है, कोई ऐसा साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि किसी को कोविड हुआ हो कुछ साल पहले और अब उसको हार्ट अटैक हो। हाँ, उस दौरान, कोविड के दौरान लोगों को हार्ट अटैक हुए कोविड की वजह से, और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस बात को जान लेंगे, वाकिफ़ होंगे इस बात से कि आज हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम करने से, खाने पीने पे ख्याल नहीं रखने से, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ध्यान नहीं देने से, तो हम असली मुद्दों पे ध्यान देंगे और कोविड की ध्यान हम हटाएंगे, तभी हम अपने इन मुद्दों पे ध्यान दे पाएंगे। सर एक बात ये भी कहा जाता है कि डोज बहुत हैवी थी, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उसकी वजह से भी इफेक्ट हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी वैक्सीन लगती है तो बॉडी में कोई भी जाएगा इंजेक्शन, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई ना कोई इम्यून थेरेपी, इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी। कोविड में भी सब लोगों को नहीं, कुछ हज़ारों में से 1-2 को प्रॉब्लम्स हुई, और वो अगर हम देखें बेनिफिट और रिस्क, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा था रिस्क की बजाय। ऐसा कहना कि वो डोज बहुत सख्त थी, ऐसा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। थैंक यू सर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ा तो ज़्यादा मुश्किल। सर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ रखी है, उसका क्या मेन एजेंडा था, उसके बारे में बताएं। उसका एजेंडा ये था, ये पहली गाइडलाइन बनाई गई है लिपिड मैनेजमेंट की, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, जो हमारी पेरेंट बॉडी है, उन्होंने स्टेप लिया और मुझे रिक्वेस्ट किया टू मेक दिस गाइडलाइन। तो उसके लिए मैंने अपने साथ अपने 22 कार्डियोलॉजिस्ट को इकट्ठा करके 3 से 4 साल लग गए इस गाइडलाइन को बनाने में, बिकॉज ये इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। वी हैव डन द डेटा, वॉट एवर वी गॉट द रिसर्च ऑन इंडियन पॉपुलेशन, उसको लेके गाइडलाइन बनाई गई है। और अभी तक हमारे गाइडलाइन नहीं थे, एक्सपर्ट ओपिनियन थे सबके, विच वर ऑल्सो वेरी गुड, बट वी वांटेड टू हैव ए प्रॉपर गाइडलाइन फॉर आवर कंट्री। उसमें हमने प्रिविलेंस देखा कि हमारे कंट्री में कैसे लिपिड्स का स्प्रेड है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, रूरल वर्सेस अर्बन एरिया, एक वो चीज़ देखी। दूसरा हमने देखा कि हमने रिस्क देखे हमारे कंट्री के कैसे हैं। हमें बीमारी 10 साल पहले आती है, उसका क्या कारण है, हमारे रिस्क फैक्टर जल्दी आ जाते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और हमारे यहाँ स्मोकिंग के साथ साथ टोबैको, च्यूइंग और बीड़ी का भी यूज़ होता है। सेंट्रल ओबेसिटी जो कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बड़ा कॉमन है हमारे कंट्री में, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं। एथ्रोजेनिक डिस्लिपिडीमिया कॉमन है, जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड है, लो HDL कोलेस्ट्रॉल है, इसका भी काफ़ी प्रिवलेंस है हमारी कंट्री में। जेनेटिक फैक्टर भी हमने देखे बड़े ज़्यादा कॉमन है, फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया और ऑल्सो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, उसका भी प्रिवलेंस हमारे कंट्री में ज़्यादा है। देन लाइफस्टाइल को हमने असेस किया जब अपने पब्लिक में, वो भी देखा बहुत डिफेक्टिव है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा सेवन है कार्बोहाइड्रेट फूड का, स्वीट्स का, इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। कुकिंग मीडिया अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, रीकुकिंग होती है ऑयल की। तो ये सारे कारणों के कारण हमें नज़र आया कि ये बीमारी हमारे कंट्री में ज़्यादा आती है। और अमॉन्ग दी और रिस्क फैक्टर, जो कॉमन रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, इससे हार्ट अटैक होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, लिपिड डिसऑर्डर इज़ द की, बिकॉज लिपिड ही आर्टरी के वॉल में घुसता है जो उस आर्टरी को ब्लॉक करता है। घुसाता कौन है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस।
तो इसलिए लिपिड को अगर हम कंट्रोल करेंगे, जो विच इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे, तो हम कई हद तक ब्लॉकेज को बचा सकते हैं और प्रीमेच्योर हार्ट अटैक और स्ट्रोक हमारे कंट्री में बचा सकते हैं। तो उसके बारे हमने इस गाइडलाइन में डिस्कस किया है और हमने अपने रिस्क फैक्टर देखे हैं, हमने अपने लेवल्स कहा है कि नॉर्मल पब्लिक को अपना LDL 100 से नीचे रखना है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को 70 से नीचे रखना है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को 55 से नीचे रखना है। इस तरह से हमने सिंप्लीफाइड दिए हैं और जिनको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है हमने उनमें सजेशन दिए है तो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल को भी असेस किया जाए। और जेनेटिक डिजीज़ के बारे में हमारा ओन डेटा है कंट्री का, जिसमें हमने देखा कि फैमिली लाइपोकोलेस्टेरोलेमिया हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा 15 से 20% यंग हार्ट अटैक पेशेंट में फैमिली लाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए हाई है। एडहेरेंस के बारे में हमने देखा कि जो हमारे कंट्री में लोग दवाइयाँ तो शुरू करते हैं लेकिन उसकी डोज कम कर देते हैं और बंद भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली उनका रिस्क फैक्टर वापस आ जाता है, जिससे फिर से हार्ट अटैक होता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने सारी डिस्कस की और ये भी बताया कि एक नॉर्मल आदमी को कब पहली बार लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। तो उसके लिए हमने बताया कि 18 साल की आयु में पहली बार लिपिड होना चाहिए। हाँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट अटैक है, जिनको जेनेटिक बीमारी है, उनको 2 साल की उम्र में भी लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और बताया है कि भाई इस तरह को अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, लिपिड्स को नीचे लाएंगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू।